एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਆਰ. ਸਚਦੇਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ, ਆਰਤੀ ਸਚਦੇਵਾ, ਰਮਨ ਸਚਦੇਵਾ, ਮੋਨਾ ਸਚਦੇਵਾ, ਰੇਵਾ ਮਦਾਨ, ਸੋਨੀਆ ਚਾਵਲਾ, ਅਨਿਲ ਚਾਵਲਾ, ਸਵੀਨਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੰਜੀਵ ਕਿਰਪਾਲ, ਜਸ਼ਵਿਨ ਸਚਦੇਵਾ, ਪ੍ਰਿਯਲ ਸਚਦੇਵਾ, ਪ੍ਰਣਮ, ਰਿਆਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਹਾਲ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਆਰ. ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਸ਼ੀਰਾਮ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ 10 ਮਾਰਚ 1934 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆਣ ਵਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਆਣ ਵਸਿਆ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਆਕਸਫੋਰਡ ਚਿਲਡਰਨ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਾਇਲ ਮਰਚੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਮਨ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਆਰ. ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 11 ਦਸੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ, ਰਮਨ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਰੇਵਾ ਮਦਾਨ, ਸੋਨੀਆ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਸਵੀਨਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੇ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਰਮਨ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਾਇਲ ਮਰਚੈਂਟਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਆਰ. ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਆਰ. ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਦੇਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਆਰ. ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਸ਼ਵਿਨ, ਪ੍ਰਿਯਲ, ਪ੍ਰਣਮ ਅਤੇ ਰਿਆਨ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। तो मेरे साथ एक बार अपनी रचना को आप सभी पावन करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री गरुड़ महापुराण की जय, सद्गुरु देव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।
एक दिन पिंजरा रह जाएगा, पंछी उड़ जाना है। जीवन और मरण में केवल एक श्वास की दूरी है, और श्वास का पता नहीं आना है या जाना है। गरुड़ पुराण में बहुत स्पष्ट वेद व्यास जी ने वर्णन किया। भगवान विष्णु गरुड़ जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे गरुड़, अनित्यानि भूतानि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, अनित्यानि शरीरानि, हे गरुड़, हर मनुष्य को अपने जीवन में इस बात का बोध रखना चाहिए कि यह जो शरीर है, यह जो जीवन है, ये अनित्य है, ये अशाश्वत है, एक दिन नष्ट हो जाना है। विभवो नैव शाश्वतः, और मनुष्य द्वारा इस संसार में आकर जो भी धन संग्रह, जो भी वस्तुओं का संग्रह किया जा रहा है, यह भी अशाश्वत है। नित्यम सन्निहितो मृत्युः, लेकिन जीवन का सत्य क्या है? मृत्यु। जो मौत है वो मनुष्य के जीवन का परम सत्य है, ये शाश्वत है। कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए मनुष्य का जो कर्तव्य है, व्हाट इज द अल्टीमेट ड्यूटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, भगवान विष्णु कह रहे हैं कर्तव्य क्या है? धर्म संग्रह। कि मनुष्य जिस प्रकार इस संसार में आकर धन और सुख संसाधनों का संग्रह कर रहा है, इसी प्रकार अपने जीवन में धर्म का संग्रह करें। धर्म अर्थात ईश्वर भक्ति, ज्ञान, ध्यान, उपासना। बहुत सुंदर हमारे ऋषियों ने यही बात यजुर्वेद में कही। वो कहते हैं कि हर इंसान को अपने आप से स्वयं रोज एक प्रश्न पूछना चाहिए, कस्तवा युनक्तिः, कि हमारी ये जो देह है, जो अशाश्वत है, इस देह में जीव आत्मा को किसने जोड़ा है? कस्तवा युनक्तिः। तो उन्होंने अगली ही पंक्ति में उत्तर दिया, स्त्वा युनक्तिः, अर्थात ईश्वर ने जोड़ा है। कहने का भाव कि हमें यह जो जीवन प्राप्त हुआ है, श्री गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। सूत जी जब यह कथा शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं कि यह मनुष्य जीवन, ये जो मनुष्य तन है, यह ईश्वर की कृपा द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है। कस्तवा युनक्तिः ईश्वर ने प्रदान किया है। और वो कहते हैं कि अगला प्रश्न आप स्वयं से करें, कस्मै त्वा युनक्तिः, अर्थात क्यों उस परमात्मा ने इस शरीर के साथ जीव आत्मा को जोड़ा? तो वह स्वयं ही उत्तर देते हुए लिखते हैं, यस्मै त्वा युनक्तिः, अर्थात हम ईश्वर से जुड़ जाएं इसलिए जोड़ा। द वेरी सिंपल मैथमेटिक्स ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का बहुत सरल सा गणित है। चीन के एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए लाओत्से, उनके पास एक व्यक्ति आया रोता हुआ, और लाओत्से से आकर कहने लगा, महाराज आज मैं बहुत दुखी हूँ। लाओत्से ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? उसने कहा, आज मेरे किसी अपने की मृत्यु हो गई है, मन बहुत दुखी है, और मेरे मन में एक प्रश्न है कि यह मौत क्या है? व्हाट इज डेथ? मृत्यु क्या होती है? आज मैं आपसे इसका उत्तर जानने आया हूँ। जब लाओत्से ने यह बात सुनी तो वो गंभीर हो गए, और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारा प्रश्न गलत है कि व्हाट इज डेथ, यह तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो यह होना चाहिए, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? जो अपने जीवन को जान लेता है, जीवन की पहेली को सुलझा लेता है, उसके लिए मृत्यु कभी भी प्रश्न नहीं रहती, क्योंकि मृत्यु जीवन का ही दूसरा पक्ष है। अर्थात लाओत्से जी ने समझाया कि हम अपना संपूर्ण जीवन मात्र केवल जीवन को जीने में व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन यदि जीवन को जान लिया जाए तो फिर मृत्यु है नहीं। इसलिए बहुत सुंदर हमारे ऋषियों ने कहा कि उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने हमारी जीव आत्मा को यह मनुष्य तन प्रदान किया है, इसके साथ जोड़ा है। और क्यों जोड़ा है? कि हम इस जीवन में उस ईश्वर के साथ जुड़ जाए। ये हमारे जीवन का सार है। महाभारत में बहुत सुंदर एक छोटा सा प्रसंग आता है। युधिष्ठिर से यक्ष ने बहुत से प्रश्न किए, और उनमें से एक प्रश्न था, किम आश्चर्य मतः परम। महाभारत में इसका वर्णन आता है, हे युधिष्ठिर, यह बताइए कि इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं, अहन्यहानि भूतानि गच्छन्ति यमाल्यम शेषास्थावरमिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम।
युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, इस संसार में आप देखिए बहुत से प्राणी जन्म ले रहे हैं और इस दुनिया से जा रहे हैं। इस जगत में रहने वाला हर इंसान रोज अपनी आंखों से किसी न किसी की शव यात्रा को शमशान की ओर जाते हुए देखता है, किसी न किसी की चिता की अग्नि को जलते हुए देखता है, लेकिन शेषा स्थावरम इच्छन्ति, लेकिन स्वयं के लिए जाग बैठता है कि शायद मैं हमेशा इस संसार में रहने वाला हूँ। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। इसलिए भगवत प्रेमियों, ये जीवन का सत्य है, आगमन और अगमन, संसार में आना और संसार को छोड़कर चले जाना, लेकिन इस जीवन का परम लक्ष्य बोध हमारे महापुरुष हमें करवाते हैं कि इस जीवन की सार्थकता है कि हम समय रहते अपने जीवन में उस ईश्वर के ज्ञान, ध्यान और भक्ति के साथ स्वयं को जोड़ें। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा, दिस ह्यूमन बॉडी इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इट इज अ प्राइसलेस गिफ्ट रिसीव्ड आफ्टर इन्यूमरेबल बर्थ्स एंड रीबर्थ्स, एंड द मेन एम ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ इज टू अटेन गॉड। ये मनुष्य जीवन स्वर्णिम अवसर है और लक्ष्य है कि हम अपने इस जीवन को सार्थक और सफल करें ईश्वर के भजन ध्यान के साथ। आइए अगला भजन हम श्रवण करते हैं। क्या लेकर हम आए जगत में, क्या लेकर जाएंगे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भजो राम नाम तर जाएंगे। इस समय कोई भी संसार की महंगी से महंगी वस्तु उन्हें इस चीज की कामना नहीं है। अगर आप उन्हें कुछ गिफ्ट दे सकते हो, अगर आप कुछ अर्पित करना चाहते हो उन्हें, तो सिर्फ प्रेयर्स हैं, हमारी प्रार्थना। ये हरि नाम संकीर्तन, राम नाम संकीर्तन जो भी हम यहाँ बैठकर अपनी जीवा से उच्चारण कर लेंगे, वास्तविक श्रद्धांजलि उनके लिए यही है। आइए सभी मिलकर के राम नाम और श्री राम चरणों में अपने ध्यान को लगाते हैं। सभी मिलकर के राम नाम संकीर्तन करेंगे। आइए। ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार झाड़ और झाखड़ आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार कांटों की बाड़ी उलझ पुलझ मरी जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो,
सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना है। द वेरी ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का परम सत्य है। एक बार एक सूफी संत हुए बहुत प्रसिद्ध शाह हुसैन जी किसी के घर ठहरे हुए थे और उन्होंने वहां क्या देखा कि एक व्यक्ति वहां पर चरखा चला रहा है। उसके पास गए, बहुत गौर से उस चलते हुए चरखे को देखा। उनके साथ उनका एक शिष्य था, उनसे पूछा, जब ये चरखा चलता है तो तुम्हें क्या अनुभव होता है? शिष्य ने कहा, महाराज ये तो बहुत साधारण सी क्रिया है। ये चरखा चल रहा है और चरखे में सूत है, उसकी डोरी जो है वो निरंतर चल रही है। सूत काटने के लिए पुराने समय में चरखे का उपयोग किया जाता था। शाह हुसैन जी ने सुना और उन्होंने कहा, नहीं, गौर से चलते हुए चरखे को देखो, क्योंकि जब मैं इसे गौर से चलता हुआ देखता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है। कौन सी बात? शाह हुसैन जी ने कहा कि जैसे ये चरखा है, ऐसे मेरा ये शरीर भी एक चरखे की तरह ही तो है। ये चरखा चलता है तो इसमें सूत की एक डोरी निरंतर चलती है, एक लय में चलती है। ठीक इसी प्रकार मेरे इस शरीर रूपी चरखे में भी मेरे भीतर जो प्राण है, जो श्वास है, वो भी निरंतर एक लय में चल रहे हैं। और जीवन का लक्ष्य क्या है? बहुत सुंदर शाह हुसैन जी ने वहां कहा, ये तन तो एक सराय है, आत्मा है मेहमान, तन को अपना समझ कर क्यों मोह करे इंसान। यह तन तो एक संकेत है, इसमें बसे है राम। और श्वास श्वास में चल रहा उस ईश्वर का नाम। इस शरीर रूपी चरखे में निरंतर वह राम नाम, वह भजन निरंतर चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, अव्यक्तोक्षरः इत्युत्स माहो परां गतिं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। हे अर्जुन, इस दुनिया में आगमन, आना और जाना निरंतर क्रिया है, लेकिन कौन इस चक्र से पार हो जाते हैं? आवागमन के चक्र से कौन छूट जाते हैं? जो मेरे परम नाम का सुमिरन करते हैं। सतगुरु नाम ठिकाना है। जीवन में कोई संत सतगुरु मिल जाते हैं, वो जीवित रहते हुए हमारे घट के भीतर ही हमें उस ईश्वर के नाम के साथ कैसे जुड़ना है, ऐसी विधि हमें प्रदान करते हैं। हृदय ज्ञानान मुक्ति, शास्त्रों में इसीलिए कहा गया, ज्ञान के बिना जीव आत्मा की मुक्ति नहीं, और ना बिना गुरु संबंधम ज्ञानस्य अधिगमः स्मृतः। और जीवन में बिना गुरु से संबंध बनाए जीव आत्मा इस आवागमन के चक्र से छूट नहीं सकती। इसलिए सज्जनों, यह जन्म, यह जीवन देवताओं को भी दुर्लभ, और वह इसलिए क्योंकि जो स्पिरिचुअल अप्रोच हम इस मनुष्य जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, वो देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने सदैव इस संसार में आकर हमें जीवन के इस ज्ञान से हमें अवगत करवाया। हमारे आदरणीय पिताजी स्वर्गीय श्री टी.आर. सचदेवा जी, आज हम यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जीवात्मा संसार में आती है, उसके बहुत से संबंध बनते हैं, वो बहुत सी प्रेरणाएं इस संसार से अपने जीवन में ग्रहण करती है, और बहुत सी प्रेरणाएं संसार में रह करके अपने परिवार को, अपने कुटुंब को प्रदान करती है। आज आदरणीय पिताजी स्वर्गीय श्री टी.आर. सचदेवा जी हमारे मध्य नहीं हैं, लेकिन एक पिता, किसी ने बहुत सुंदर कहा कि इस दुनिया में दो चीजों की को हम माप नहीं सकते, एक माँ की ममता को और एक पिता की क्षमता को। बहुत सुंदर किसी ने कहा है, a father's love is like a shining light, a guiding light that provides guidance in every step of human life। कि पिता का जो प्रेम है वो व्यक्ति को उसके जीवन के हर कदम पर, एवरी स्टेप, वो उसे मार्गदर्शन रूपी प्रकाश प्रदान करने वाला होता है। आप देखिए, पिताजी ने इस संसार में आकर एक अच्छा जीवन व्यतीत किया, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, और अपने परिवार को अच्छे संस्कार प्रदान किए। बहुत सी प्रेरणाएं उन्होंने जीवन में ग्रहण की होंगी, बहुत सी प्रेरणाएं उन्होंने अपने जीवन में दी होंगी, लेकिन सज्जनों, आज वो इस दुनिया से चले गए, तो जाते जाते भी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा हम सभी को देकर के गए हैं।
और वो यह है, अनमोल तेरा जीवन तो यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल और तू किस ओर जा रहा है। गफलत की नींद में ही तारा ढल जाए, पल भर का क्या भरोसा, कल आए या ना आए, गिनती की है ये श्वासें तू यूं ही लुटा रहा है, अनमोल तेरा जीवन और तू यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ होगा, जो कुछ यहाँ किया है उसका हिसाब होगा, कर्मों की है ये खेती तू फल उसका पा रहा है, अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गवा रहा है। ऐ मानव तू प्रेम कर ले अविनाशी से, जुड़ जा तू उर्वासी से, यह तो बता इस नश्वर दुनिया में क्यों अपने मन को लगा रहा है, अनमोल तेरा जीवन और तू यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल और तू किस ओर जा रहा है। दुनिया से जाने वाली हर जीवात्मा बाकी सबको यह प्रेरणा देकर के इस दुनिया से जाती है कि हम अपने जीवन में जहाँ बहुत सी सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हम बहुत से कर्तव्यों को निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन आत्म कल्याण रूपी जो कर्तव्य है अर्थात ईश्वर की भक्ति व ज्ञान ध्यान, हम उसे भी अपने जीवन में धारण करें। सज्जनों, हम सभी बचपन में स्कूल गए हैं और स्कूल पाठशाला में उस विद्यालय में जाकर हमने बहुत कुछ अपने टीचर से इस दुनिया का ज्ञान सीखा है और आज भी हमें वो याद है। हमने गणित सीखा, 1 2 3 सीखा, हमने क ख सीखा, हमने इंग्लिश में ABC सीखी, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग एंड सो ऑन। आज तक भी पहली कक्षा में क्लास में जो हमने सीखा जिंदगी के इस पड़ाव तक भी हमें वो स्मरण रहता है। लेकिन जब हम किसी संत महापुरुष के पास जाते हैं तो वो भी हमें हमारी जिंदगी की ABC हमें सिखाते हैं। A फॉर ऑलवेज, B फॉर बी एंड C फॉर केयरफुल। ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द अल्टीमेट एम ऑफ योर लाइफ। हम अपने जीवन के, अपनी आत्मा के परम कर्तव्य के विषय में भी सदैव सतर्क रहें। B फॉर बर्थ अर्थात जन्म है और D फॉर डेथ मृत्यु, और बर्थ और डेथ के बीच में B और D के बीच में एक अल्फाबेट आता है C, और C से होता है चांस अर्थात हमें ये जो जीवन ये अवसर मिला है, और C से ही होता है चॉइस, चुनाव भी हमारे पास है कि हम अपनी इस जिंदगी को, जो लाइफ स्पैन ऑफ लाइफ है, जन्म और मृत्यु के बीच का समय, हम उसे कैसे यापन करते हैं। संसार कर्तव्य कार्य करते हुए हम अपनी आत्म कल्याण के विषय में अवगत होते हुए अपने इस आत्म कल्याण मार्ग को भी प्राप्त करें जो ज्ञान ध्यान है। और जब जीवन में कोई पूर्ण सद्गुण मिल जाते हैं, वो हमें ऐसा ब्रह्म ज्ञान देकर हमारे अंतर्घट में उस ब्रह्म स्वरूप ईश्वर के साथ हमें जोड़ देते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा, कब होकर करुणा नर देहि देत ईसु बिनु हेत सदी, कि वह प्रभु करुणा कर हमें यह जीवन प्रदान करने वाले हैं। और इस संसार में रहते हुए, इस जीवन को यापन करते हुए हम किसी संत सद्गुरु से उनकी शरणागति होकर राम नाम, उस ईश्वर ज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त करें, ब्रह्म से जुड़े अपने अंतर्घट में, ताकि हमारा जन्म और हमारा मरण दोनों ही सार्थक हो जाए। जीवन का यह चक्र और सृष्टि का यह नियम, सज्जनों, इसलिए हमारे महापुरुषों ने जीवन का सार मनुष्य को बताते हुए कहा कि जीवन और मृत्यु और इसके मध्य का यह जो हमें समय प्राप्त हुआ है, इसकी सार्थकता जीवन में उस ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर हम अपने जीवन को सार्थक करें। हमारे आदरणीय पिताजी स्वर्गीय श्री टी.आर. सचदेवा जी आज हम सभी उन्हें ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से शोकाकुल परिवार को हम ईश्वर के श्री चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हुए, उनके श्री चरणों में ऐसी याचना करते हुए शोकाकुल परिवार को इस शोक से उबरने की प्रभु शक्ति प्रदान करें। और जैसा कि हमारे संतों ने कहा कि जब भी कोई जीवात्मा इस संसार से जाती है, ये जो सभा है यह मात्र केवल शोक सभा या श्रद्धांजलि सभा नहीं है सज्जनों, वास्तव में यह एक प्रेरणा और ज्ञान सभा हुआ करती है, जहाँ बैठकर हम अपने जीवन के उस ज्ञान से अवगत हों, हम अपने जीवन के परम कर्तव्य से अवगत हों और हमारे जीवन में उसका बोध हो। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक संचालक श्री आशुतोष महाराज जी हैं, आज जन जन में
इस ब्रह्म ज्ञान को संस्थान विस्तृत कर रहा है। जिस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में की, जिस ज्ञान की चर्चा भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में करते हुए अर्जुन से कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम कारकः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। हे अर्जुन, शास्त्रों में लिखी विधि अनुसार जो जीव आत्मा अपने जीवन में उस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर लेती है, वह परम गति और परम शांति को अपने जीवन में प्राप्त करती है। तो इसी सार के साथ हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आदरणीय पिताजी को। तो आइए उन्हीं की श्रद्धांजलि और आत्मिक शांति के निमित्त एक श्री राम कीर्तन हम आग्रह करेंगे साध्वी बहनों से, क्योंकि जैसा कि हमारे आदरणीय पिताजी श्री राम भक्त थे, श्री हनुमान भक्त थे। बहुत वर्षों तक उन्होंने श्री हनुमान जी के उपवास अपने जीवन में रखे और यह उनके जीवन का पुण्य है कि आज उनकी इस श्रद्धांजलि सभा, इस प्रेरणा सभा में हम सभी बैठकर श्री राम संकीर्तन करते हुए उन्हें यह हरिनाम संकीर्तन रूपी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में विश्राम प्रदान करें। आइए सभी मिलकर एक राम संकीर्तन हम श्रवण करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, जब ले सीताराम प्यारे दो घड़ी। राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। छोड़ कर जग का पसारा, छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, जब ले सीताराम प्यारे दो घड़ी, हो जब ले सीताराम प्यारे दो घड़ी। छोड़ कर जग का पसारा, छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, जब ले सीताराम प्यारे दो घड़ी, हो जब ले सीताराम प्यारे दो घड़ी। छोड़ कर जग का पसारा, छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, जब ले सीताराम प्यारे दो घड़ी, हो जब ले सीताराम प्यारे दो घड़ी। राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरे पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या
विश्वधारं गगन सदृशं मेघनं शुभां लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यामृतं वन्दे विष्णुभवेनं कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जैसे कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं, श्री टी.आर. सचदेवा जी प्रिंसिपल, जो कि आपको सब बहन बता चुके हैं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में इसमें कोई दो राय नहीं कि वो प्रभु भगत थे, जो कि बताया कभी तक कभी मंगलवार को उपवास करते थे। ऐसी अवस्था में भी, ऐसे ही उम्र में भी आकर के बड़े प्रभु भगत, जिन्होंने हर साल रामायण जी का पाठ जो है आदर्श नगर में जब रहते थे, हर साल रामायण जी का पाठ करवाना, बच्चों की शिक्षा दी। आज बच्चे उस लायक हुए तो माता पिता का ये आशीर्वाद है, क्योंकि आज वरिंदर जी का नाम, रमन जी का नाम, ये प्रभु की भक्ति है जो यहाँ तक ले जाती है। माता पिता का आशीर्वाद है और माँ बाप का ऋण जो है हम चुका नहीं सकते। ठीक है, आज हम यहाँ नहीं है, लेकिन आप सब देख रहे हैं, हाजिर बता रही है उनका कितना स्नेह होगा लोगों के साथ। हर एक साल मीठा भूलना। अभी पीछे मंदिर में भी आए, मैंने पूछा से ठीक है, ठीक है। ये सब तो भक्ति का कारण है। आज उस दातवा के लिए ब्रह्मा के चरणों में याचना, वंदना, अरदास, उनके आत्मिक शांति दे दो। जो कि संजोगपाल जी का पाठ रखा गया, उसके पूर्ण होती होगी बेटों को तिलक किया जाएगा। पीछे बहुत सुंदर फुलवाड़ी छोड़ कर गए हैं, पोतरे पोतरियां, और ये छोटे से भजन द्वारा उसको पश्चात पाठ पूर्ण होती होगी। तेरो नाम, तेरो नाम सुख की खान, तेरो नाम सुख की खान, दीजो मुझको भक्ति का दान, तेरो नाम
है। धर्म बड़ो धन धाम बड़ो, करतूत बड़ी तन से लिपटी है। के झूमत द्वारी गजेंद्र हजारों, इंद्र देना एक घटी है। पर तुलसी रघुनाथ भजन के बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कंसुचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुनश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज नूरमहल आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदर्श नगर सभा, सर्वध्याकारी शिक्षा समिति, जलंधर गीता भवन, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इन सर्विस ऑफ MSME सेक्टर, लघु उद्योग भारती, सुधीर के सैगल एसोसिएशन, उस तो अलावा श्री राम मंदिर छोटी अयोध्या, सर्वधिकारी एजुकेशन सोसाइटी, श्री रमनजीत सिंह सिक्का जी MLA खडूर साहब तो, श्री बलबीर सिंह जी MLA चिंतपूर्णी तो, भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश, हिंद समाचार पत्र समूह, पंजाब केसरी ग्रुप, परमिंदर बैल जी कैशियर देवीतला मंदिर, पवन सेठिया जी MLA राजेंद्र, पूर्व MLA राजेंद्र बेरी जी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रधान, युवा मोर्चा भारतीय जनता युवा मोर्चा पंजाब प्रदेश, नूरपुर रावली मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, SPS विद जी, अमित कुकरेजा जी, SHO संजीव कुमार जी, नीविया स्पोर्ट्स अनूप खरबंदा जी, शारदा सैनिटेशन तो रोकी शारदा जी, सुरेंद्र खुलर जी गीता मंदिर तो, उस तो अलावा तरुण सिक्का जी, पुनीत खन्ना जी, सुमेश लूथरा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो, विवेक खन्ना जी काउंसलर भारतीय जनता पार्टी तो, आदित्य जैन प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इस तो अलावा भी जलंधर दियाँ सारिया अलग अलग राजनीतिक समाजिक एसोसिएशनों ने आज के इस दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन भेंट किए हैं। सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੁਣ एक परिवार के वालों बहुत ही होनहार बच्चा होनहार बेटा यशवीन सचदेवा जी सारे के नाल आए हुए सारे संगत के नाल अपना धन्यवाद करेंगे और विचार साझा करेंगे। यशवीन सचदेवा सब लोगों का आभारी हूँ जो आज हमारे साथ मेरे दादाजी श्री TR सचदेवा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। अगर हम बात करते हैं उनकी जर्नी की, जैसे कि हम सबको पता है कि he has completed the age of 90 years of his life, which tells us a lot about his experience and what a remarkable man he was. His journey started when he attained the age of 18 years, जब वो partition of 1947 के बाद इंडिया आए, and he laid the foundation of first English medium school in Jalandhar by the name of Oxford, and with a mission to provide quality education to everyone, especially the youth. As an educationalist, he believed in the power of knowledge and उनकी dedication to education जो थी उसी ने ही उनको इंस्पिरेशन एक ऐसी बनाई जो काफ़ी लोगों के लिए और आज भी कम्युनिटी में वो इन्फ्लुएंस एक पड़ा हुआ है। और आई थिंक कि उनके आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ उपस्थित होंगे और ये सबके लिए प्राउड मोमेंट टू विटनेस है। He was a true gem of a person and always ready to lend a helping hand. But beyond his professional accomplishments, there are certain learnings जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। जैसे कि उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है
living a very healthy and active life. And I remember one of his best habits, which kept him till his elderliness, was his love towards fitness, as he used to exercise daily early in the morning. And at this age, it is quite a difficult task to do. And his legacy lies in his kindness and love he had towards all those who had the privilege of knowing him. As we mourn his passing and say our final farewell, let's celebrate the incredible life he led and kindness he had, and remember the stories and laughter he used to share with us. Rest in eternal peace, Dad. Will be dearly missed, and your light will continue to shine in our hearts forever. At last, as a tribute to his teachings, I request all of you to have Langar Prashad after the Rasam Bhag. Om Shanti.